Good morning, student. Welcome in the science class. In previous video, exam we have learned about the types of habitat: aquatic and terrestrial habitat. In the aquatic habitat, what is meant by aquatic habitat? The organisms which live and breed in the water are called aquatic organisms, and the water form the habitat of vast variety of organisms. River, ponds, lakes, streams and ocean, these are the aquatic habitat. Okay, there are two types of marine habitat and freshwater habitat. What is the difference between marine habitat? Marine habitat means sea and oceans, these are the marine habitats. And freshwater habitat means river, ponds and lakes, these are the freshwater habitat. There are also two types of what is the coastal region. The region where the sea join with the land is called the coastal regions, and its rise to the coastal habitat, वहाँ पे coastal habitat बनती है. तो and last there are estuaries. What is the difference between coastal and estuaries? Estuaries means there are some region in the coastal habitat where the river and the stream of fresh water mix with the salty water of a sea. Such habitat is called estuaries. Mangroves, seaweeds, crabs, oyster are some organisms often seen in these regions. Okay, तो समझ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोस्टल हैबिटेट एंड एस्टुरीज. यहाँ पे एक क्वेश्चन है इन द पेज नंबर 111. What is the difference between coastal area? What is the coastal area and how it is different from an estuaries? तो ये है एग्जाम्पल. एस्टुरीज मीन्स जहाँ पे रिवर एंड स्ट्रीम जो फ्रेश वाटर होता है वो मिक्स होता है सॉल्टी वाटर के साथ, मीन्स सी वाटर में. इट इज कॉल्ड एस्टुरीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट. इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ये है उसके डिफरेंट टाइप्स. टेरिस्ट्रियल्स मीन्स लैंड, है ना, कि जो अर्थ सरफेस और लैंड इज कंसिडर टू अ मोस्ट अनइवन रहती है, तो उसकी वजह से उसके टाइप्स हो गए. तो ये है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन. एंड उसमें जो बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरैक्ट होते हैं ईच अदर एंड मेक अ इकोसिस्टम. अ बायोटिक component of land such as temperature, moisture, soil types, rainforest, rain types जो भी होगी, कम है ज़्यादा है, ये सब डिपेंड होता है. और उसकी वजह से ग्रासलैंड. ओके, तो ग्रासलैंड, विच एनिमल इन द ग्रासलैंड? जेब्रा, डियर, जिराफ. आपने एक वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, उसमें पूरे टाइप्स है कि अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट उनके फीचर्स बनते हैं एनिमल्स के. याक है ना, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा जो उनकी जो स्किन होती है उसमें ज़्यादा फेदर्स रहते हैं या उसमें बहुत सारे हेयर्स रहते कि जो वहाँ पे जो एरिया होती है कोल्ड एरिया है वहाँ पे उनको बहुत सारी, जैसे कि कैमल है, उनकी जो स्किन है वो मोटी होती है. ओके, तो इसकी वजह से उनको वो हैबिटेट पे डिपेंड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आर्बोरियल. ओके, तो टुडेज अवर न्यू पॉइंट इज आर्बोरियल.
Okay, second point is aerial or arboreal. What is meant by aerial or arboreal habitat? Air is not an easy and suitable medium to support a life, and in fact origin of any organism is not possible in air, though a certain aquatic and terrestrial organisms have become secondarily adjust for the aerial existence, and the organisms that use air for their existence are called aerial or arboreal animals. Means those animal live in a एयर को एडजस्ट करना, जैसे कि वाटर में रहने वाले हैं एक्वाटिक्स एनिमल्स, एंड these are the terrestrial animals, those are live in air, है ना, एयर में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट. द वर्ड अर्बो has been derived from Latin words which means tree, and these arboreal animals are their dwelling and is often used for birds as they build their nest on tree and rest there. However, there are some birds such as eagle and swallow which carry out much of their activity in the air or in a flight. Boreal forest habitat. Boreal forest having a short summer and a long winter. They receive heavy snowfalls. Trees in boreal forest are evergreen. They are conical in shape. Their leaves are needle like. जैसे कि निडल होती हैं उसके लाइक उसके ट्रीज होती है. ओके. Tundra habitat. Tundra habitats are almost covered with snow, and so they are very cold and dry. The vegetation is every scanty and in the form of some grasses. Means tundra habitat is a covered with snow. वहाँ पे कुछ भी plants आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं. उसकी प्लांट उसमें सम ग्रासेस ही उसमें वहाँ पे ग्रोन अप हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ओके. सम एग्जाम्पल क्वेश्चन इज हियर, टेस्ट योर नॉलेज. ओके. तो इसको हम बाद में मैं आपको उसको बाद में सेंड करती हूँ. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज adaptation. We have learned that the different types of plants and animals are found in different habitat. अभी हमने बात की थी कि जैसे कैमल है तो डेजर्ट में ही रहता है, अदर्स एनिमल डेजर्ट में नहीं रह सकते क्योंकि उनका जो एडेप्टेशन हुआ है डेजर्ट के लिए होता है. ओके. You have also learned that all living organisms found in particular habitat interact with the abiotic component from their survival. Abiotic components means वहाँ का टेम्परेचर है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, अवेलेबिलिटी है, रेन है, वहाँ पे रेन स्कार्सिटी है कि रेनफॉल ज़्यादा है, ये सब उसमें आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में. हैव यू एवर थॉट दैट why a polar bears live in very cold region and not in desert, or camel live in desert and not in cold region. सपोज हमने देखा कि पोलर जो बियर है लिव इन अ कोल्ड रीजन, तो पोलर बियर उनको आपने देखा है कि भी वाइट कलर में आता है. मीन कॉमीफ्लेज मीन्स वो स्नो, जब भी वहाँ पे स्नो होता है वाइट कलर्स का होता है, तो पोलर बियर अल्सो इन वाइट कलर्स. उसकी जो स्किन होती है बहुत, उसकी स्किन होती है मोटी होती है कि जो ठंडी से वो वहाँ पे रह सके. दूसरा है कि कैमल लिव इन डेजर्ट एंड नॉट इन कोल्ड रीजन. नहीं रह सकता. कैमल जो बना है उसके फीट जो बने हैं वो सैंड में रहने के लिए, अच्छे से चलने के लिए उसको कैपेबल है. उसकी जो स्कार्सिटी है वाटर की, तो
वो अपना वाटर स्टोर कर सकता है 21 डेज, अगर उसको वाटर नहीं मिला तो भी वो रह सकता है। मीन्स कैमल जो बना है वो डेजर्ट के लिए बना है, वो कोल्ड रीजन में नहीं रह सकेगा। दिस इज बिकॉज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट आर सुटेबल फॉर देम टू सर्वाइव। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सब सुटेबल है उसको सरवाइव करने के लिए, तो इसलिए कैमल रहता है डेजर्ट, पोलर बियर इन द पोल की तरफ रहता है। समटाइम्स द abiotic components might not be suitable for the organism to survive. In such a condition, organisms either develop a feature in their body to cope up with the surrounding और दे डाई। आपको कब लगता है, कभी कभी हो सकता है कि ऐसी भी कंडीशन हो जाती है सराउंडिंग की, वो वहाँ के जो फीचर्स है उससे वो उनकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, तो या तो वो अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, या वो उनकी डेथ हो जाती है। द चेंज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू कॉप up with the environment is referred to as a adaptation। मीन्स adaptation जो भी चेंजेस होती है ऑर्गेनिजम्स मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। अगर ठंडी ज़्यादा हो गई है वहाँ पे तो वो सर्वाइव कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू दैट दे चेंज कर लेते हैं अपने आप में। इट इज़ कॉल्ड द एडाप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स show various adaptation that help them to live and grow in different habitat. And adaptations are a special feature that allow the plant or animal to live in a particular place or habitat. This adaptation make it very difficult for the organism to survive in a different places. That it's why a certain plants or animal are found in particular area and not in other place। मीन्स हमने पहले देखा कि क्यों कैमल पोल की तरफ नहीं रह सकता, क्यों पोलर बियर डेजर्ट में नहीं रह सकते, तो उसका आंसर क्या है कि एडॉप्टेशन मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि दूसरे को अडॉप्ट करना इतना इजीली नहीं होता, कोई भी कंडीशन को इजीली वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे एडॉप्टेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में धीरे धीरे होती है और एकदम से एडॉप्टेशन नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई अ सर्टन प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉट इन अदर प्लेसेस। इसलिए वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो हम देख सकते हैं। याक को हम कहाँ देखते हैं? माउंटेन एरिया में या कोल्ड, जहाँ पे माउंटेन है कोल्ड भी ज़्यादा है, ऐसे हम याक को देखते हैं। फिर कैमल को हम डेजर्ट में ही देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू वुड नॉट फाइंड कैक्टस इन द आर्टिक एंड नो टॉल ट्री इन अ ग्रास लैंड। ओके, तो ये जो है कि हम कैक्टस को कहाँ देखते हैं? इन डेजर्ट में देखते हैं। वो सर्वाइव वहाँ पे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दे कन्वर्ट देयर लीफ इनटू द थ्रोन्स। उन्होंने थ्रोन में कन्वर्ट किया है अपने आप को, लीव्स ने। उसके जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं अंदर और अच्छे से सॉइल में, जिसकी वजह से लॉन्ग रहते हैं कि जहाँ पे उनको वाटर अच्छे से मिल सके। दूसरा है कि वो उनके लीफ है वो ठीक रहते हैं, उसमें वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, एंड टॉल ट्रीज ग्रासलैंड में नहीं होते, ग्रासलैंड में ग्रास ही होती है। उसमें जो टॉल ट्रीज होती है वो जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो वहाँ पे रहती है। ओके, तो दीज आर what is mean by adaptation. The change according organism to cope up with a environment is referred as a adaptation, and adaptations
Living organisms show the various adaptation that help them to okay, turn your page number 112. Okay, adaptation for aquatic habitat. Especially mean water is essential for all living organisms. All important life activities within the cell take place in the presence of water. Means without water हम नहीं कर सकते. जो भी कैरी आउट होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड है ना, सर्कुलेशन होता है. तो एनिमल्स इन प्लांट्स ऑल्सो मीन्स कंडक्टिंग टिश्यूज देखे थे हमने. जो भी कंडक्टिंग टिश्यू है रूट्स से लेके लीव्स तक वाटर के थ्रू ही उनका मिनरल्स एंड वाटर जाते हैं और फूड भी लीफ टू रूट्स में आते हैं. तो ये भी सब होता है बिकॉज ऑफ वाटर. द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर हैव अडॉप्ट themselves to cope up with the conditions prevailing in water such as water pressure, movement of water, breathing in water, etc. Adaptation in plants. The stem of aquatic plants are long, narrow and flexible to move with water current without getting damage. For example, lotus. Okay. तो सपोज लोटस इन द पिक्चर आप देख रहे हैं, लोटस लिव इन वॉट एक्वेटिक प्लांट्स है. तो अकॉर्डिंग टू एडॉप्टेशन के लिए उनको उनकी जो स्टेम होती है इट्स लॉन्ग रहती है एंड नैरो और फ्लेक्सिबल है कि जो कि वाटर करंट आते हैं. वाटर आपने देखा होगा कि वाटर करंट होते हैं, जोर से वाटर फ्लो होता है. तो उसकी वजह से टूटना नहीं चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी है तो टूटते नहीं है. उसकी जो स्टेम होती है वो मूव होती है, वाटर करंट की वजह से डैमेज नहीं होती क्योंकि लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड नैरो भी होती है. ओके. नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर स्पेस इन देयर स्टेम दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर. सेकेंड, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होती है, स्पोर्स होती है, स्पेस होती है, एयर स्पेसिस होती है जिसके थ्रू वो फ्लोटिंग कर सकते हैं. एंड सबमर्ज प्लांट्स लैक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स थ्रू स्टेम्स. इंस्टेड ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व गैसेस आर एब्जॉर्ब थ्रू द लीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर. और यहाँ पे जो डिजॉल्व वाटर, जैसे वाटर में गैसेस होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं with the help of leaves directly. The roots and the roots hair are very much reduced in aquatic plants. Their prime function is to help in anchorage means उसको hold करके रखते हैं. anchorage इसको hold करके रख सकते हैं. और जो उनका जो मेन फंक्शन होता है रूट्स का कि प्लांट को होल्ड करके रखना. तो जो उसके जो हेयर्स रहते हैं रूट्स एंड रूट्स के हेयर्स आर, उनका जो फंक्शन होता है उसको पकड़ के रखना. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली हैव द लार्ज एंड फ्लैट लीव्स. द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव्स वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम rotting. Stomata is present on the upper surface. मीन्स अदर जो प्लांट्स होते हैं अगर वाटर में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो खराब हो जाते हैं. ओके. तो ये नहीं होते बिकॉज उसमें एक वैक्सी लेयर होती है और उसकी वजह से वहाँ पे वाटर वहाँ पे रुकता नहीं है और दैट्स वाई. और फ्लैट भी होते हैं. फ्लैट की वजह से वो वाटर में अच्छे से अपने आप को फ्लोट कर सकते हैं. Leaves are submerged plants such as tabgrass are withstand a strong water current without being a damage. सेकेंड है कि जो टैब ग्रासेस रहती हैं वो नैरो रहती हैं और उसकी वजह से अच्छे से स्ट्रांगली वाटर में वो स्टैंड अप हो सकती है. इन फ्लोटिंग प्लांट्स
Chlorophyll is restrict to upper surface of leaves which is exposed to sunlight. और उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो भी अपर सरफेस में होता है कि जिसकी वजह से जो भी सनलाइट हो वो अच्छे से उनको, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है अच्छे से होती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल यूज होता है. सम प्लांट प्रोड्यूस सीड दैट कैन फ्लोट. Adaptation in animals. Animals such as fish, whales, seal, dolphin develop a number of adaptation due to their aquatic mode of life. This adaptation means animal have a streamlined body shape which reduce resistance caused by the running water. Water में आप जब भी आपने उसका शेप देखा है, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप होता है. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं या एरियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. ओके, कि उनको जो रेजिस्टेंस होती है, नहीं रनिंग वाटर में रेजिस्टेंस आती है ना, फ्लोइंग वाटर रहता है उसमें से वाटर में उसको मूवमेंट होनी पड़ती है, तो उनमें रेजिस्टेंस, उसमें कम रेजिस्टेंस आता है जिसकी वजह से उनके शेप होते हैं कि सामने से एकदम से शार्प होते हैं, बीच में मोटे होते हैं. ओके, और फिर से एकदम से नैरो होते जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. एंड जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ने भी उनसे बहुत सारा सीखा. हमारी बोट जो रहती है ना, बोट का शेप देखो आपने, क्योंकि हमने एनिमल से ही देखा है. एरोप्लेन का शेप आपने देखा होगा. तो एयर में भी रेजिस्टेंस रहता है एयर का, और जब एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उनको रेजिस्टेंस रहता है रनिंग वाटर का, तो उसको रिड्यूस करने का काम स्ट्रीमलाइन बॉडी से होता है. एंड दस हेल्प इन द इजी मूवमेंट इन द वाटर. सम एक्वाटिक एनिमल्स सच एज ऑक्टोपस एंड स्क्विड prefer to stay deep into the water as they do not have a streamlined body shape. और जो एक्वेटस वगैरह ऑक्टोपस रहता है तो वो उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं रहता क्योंकि वो डीप में रहते हैं, उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, रनिंग वाटर नहीं होती ना डीप में, तो उनका जो वाटर का फ्लो होता है वो डीप में ज़्यादा रनिंग वाटर नहीं होती. बट दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन व्हेन दे मूव इन वाटर. और जब वो मूवमेंट करते हैं वाटर में तब वो अपने आप को बॉडी में चेंजेस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. स्केल प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ फिश आर स्लीपरी एंड वाटरप्रूफ विच प्रोटेक्ट देम एंड ऑल्सो हेल्प टू इजी इन वाटर. ओके, दिस आर द एडाप्टेशन इन एनिमल्स. क्या होती है कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उनकी स्किन पे स्केल्स होती है, उसके बाद उनके जो बॉडी उससे वो अपने आप को वाटर में सेव करते हैं और वहाँ पे ग्रोन अप होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फिश हैव गिल्स which help to breathe in oxygen dissolved in water. Sea animals such as dolphin and whales do not have gills. The upper part of the head has blowholes and which allow them to breathe easily when they are near the surface of the water. Means जो गिल्स होती हैं, वेट ऑक्सीजन होता है इन द वाटर, तो वो एब्जॉर्ब ब्रीदिंग कर सकती है विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. एंड उनको क्या एडाप्टेशन है फिर फिश में, क्योंकि वो वाटर के अंदर रहती है तो वो वेट ऑक्सीजन यूज कर सकती है, जैसे कि हम नहीं कर सकते बिकॉज वी यूज द लंग्स. तो लंग्स यूज करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन है और वेल है, दे डू नॉट हैव द गिल्स, उनको गिल्स नहीं है, दे यूज. तो वो क्या करते हैं, ब्लो होल्स रहते हैं ऑन द सरफेस उनके अपर पार्ट्स ऑफ द हेड में, और वो
ऊपर आती हैं। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन ऊपर आती हैं, है ना? तो क्यों आती हैं? और ब्लो होल्स की वजह से, विच अलाउ देम टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे आर नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए सरफेस ऑफ द वाटर आती हैं और वो कैसा यूज़ करती है? ऑक्सीजन यूज़ करती है, लेकिन ड्राई वाला ऑक्सीजन यूज़ करती हैं। ऊपर आके ब्रीदिंग करती हैं और उनके ब्लो होल्स होते हैं, उसके लिए इजीली वो ब्रीदिंग कर सकती है। ओके, फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। स्विमिंग करती है तो उनको फिन्स रहते हैं। द टेल फिन्स एंड फ्लैट फिन्स हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन एंड टू कीप द बॉडी बैलेंस इन द वाटर। उनके जो फिन्स रहते हैं पीछे के, टेल फिन रहते हैं और फ्लैट फिन्स रहते हैं, जिसका यूज़ वो करते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन and keeping the body balance in the water. The whales have the flatter for the swimming. Aquatic animal have air bladder to help them to float in water. उनमें aquatic animal में air bladders रहते हैं कि जिसके थ्रू वो floating करते हैं on the water. These are the features of aquatic animals and some plants. हमने देखे प्लांट देखे, जैसे कि लोटस है, ग्रासेस है, वो फ्लोटिंग कर सकती हैं बिकॉज दे हैव द लॉन्ग, उसके स्टेम्स रहती है, नैरो रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, जिसकी वजह से वाटर के जो भी वाटर करंट रहते हैं उससे वो डैमेज नहीं होती। उनके लीव जो होते हैं वैक्सी रहते हैं बिकॉज वो फ्लोटिंग अच्छे से करते हैं, फ्लैट रहते हैं। ओके, कि वो फ्लोटिंग कर सके, और वैक्सी होने की वजह से वो क्या होती है, खराब नहीं होती, लीफ उसकी सड़ नहीं जाती वाटर की वजह से। ओके, और these are the some adaptation in aquatic plants and animals. Okay, thank you. Animals and plants in water. Animals that live in water have a body that helps them in swimming. For example, fish have fins and streamlined body that help them to swim in water. They also have gills to breathe underwater. Animals that live in water are called aquatic animals. Water plants like lotus and water lily have a soft and spongy stem. Their leaves are broad and float on the surface of water. Leaves of these plants also have a thick waxy coat on the undersurface that prevents them from getting wet. Water plants or submerged water plants remain underwater. They have thin and narrow leaves. Stomata are absent from their leaves. Examples of submerged water plants are Hydrilla and Vallisneria. Plants that live in water are called aquatic plants.